Sexual reproduction. It involves fusion of two compatible gametes or sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. The flower is a specialized reproductive structure of a plant in which the sexual reproduction takes place. ये इसे आप underline कर सकते हो. You can write here, flower is condensed shoot for sexual reproduction. That's all. Remember this definition of flower. Flower is condensed shoot for sexual reproduction. Flower is condensed shoot for sexual reproduction. And you see this diagram, यहाँ पे this is sepal. इसे लेबल करो सेपल. सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है वो है सेपल, और सेपल के नीचे आप लेबल करेंगे कैलिक्स, बिकॉज सेपल इज द यूनिट मेंबर ऑफ कैलिक्स. उसके ऊपर करोला लेबल करो. सब बच्चों को पता है कि करोला क्या है. एक्चुअली यू विल हैव टू लेबल पेटल, और पेटल के साथ आप लिखिए करोला. देन द कंप्लीट stamen whorl is labeled as androecium, and a single member of the androecium is labeled as stamen. करो जल्दी जल्दी. Single member is called as stamen, but the complete whorl is known as androecium. और सबसे अंदर जो है वो है pistil or carpel, which is unit member of gynoecium. Pistil or carpel, which is unit member of gynoecium. तो सबसे अंदर का जो आपको दिख रहा है that is unit member of gynoecium, which is known as pistil or carpel. तो आप उसके नीचे लिखिए जल्दी से. All these whorls consist of modified leaves. All these whorls consist of modified leaves. Calyx first node, comma, corolla second node, comma, लिखना है calyx first node, corolla second node, comma, androecium third node and gynoecium fourth node. Gynoecium fourth node. We know that on any branch the nodes are present. You can see here on this particular branch also you can see various nodes. और ये जो बडिंग दिखाया है ना वो नोड पे ही होता है. कल ही मैंने आपको बडिंग पढ़ाया था जो नोड पे ही किया जाता है क्योंकि वहीं पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है. तो 4 नोड वाली ब्रांच अगर कंडेंस होती है तो इंटरनोडल डिस्टेंस कम हो जाएगा, और हर एक नोड से आने वाले मॉडिफाइड लीव्स ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के बहुत ही पास से प्रोड्यूस हो रहे हैं. यानी कैलिक्स इज वेरी नियर टू द करोला, विच इज़ वेरी नियर टू द स्टेमन और एंड्रोइशियम, एंड विच इज़ वेरी नियर टू द गाइनोइशियम. तो इस प्रकार से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दे आर नथिंग बट द मॉडिफाइड लीव्स for sexual reproduction, and this condensed branch with 4 nodes is known as flower. The condensed branch or condensed stem with 4 nodes is known as flower. और फ्लावर में 2 essential nodes है, 2 non essential nodes है. essential nodes किसको बोलेंगे या essential whorls किनको बोलेंगे हम. आप लिखिए essential whorls,
dash androecium and gynoecium. And non-essential whorls, calyx and corolla. Essential whorls, androecium, gynoecium. Non-essential whorls, calyx and corolla. Perfect flower dash with both. एक मिनट है. परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर का कंसेप्ट यह है कि इफ़ ऑल 4 whorls आर प्रेजेंट देन द फ्लावर इज कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर. इफ एनी वन whorl इज नॉट प्रेजेंट देन द फ्लावर इज इम्परफेक्ट फ्लावर. If all 4 whorls are present then perfect flower. लिखो. If all 4 whorls are present then perfect flower. If any one or 2 whorls are absent then or fused then imperfect flower. If any one or 2 whorls are fused or not present then the flower is known as imperfect flower. ऑलवेज रिमेंबर में दिया है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज़ द प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म्स. जो हमें वृक्ष दिखते हैं ना वो उनके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है. वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस to produce the haploid spores that form gametophyte. The gametophytes are considerably reduced and develop within the flower. They produce gametes. ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि how there is formation of gametophyte which will produce gamete. The gametes will fuse to form zygote and zygote will form sporophyte. तो वही साइकिल आज हमें सभी पिक्यूलैरिटीज़ के साथ स्पेशलिटीज़ के साथ अभी पढ़नी है. यानी हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम एंड्रोशियम देखते हैं विच इज़ मेल whorl. Androecium is male whorl and its unit member is stamen. But stamen is also known as microsporophyll. Stamen is also known as microsporophyll. सबसे पहले ये वाला चार्ट हम याद कर लेते हैं सिर्फ मेल के लिए. फीमेल का हम बाद में करेंगे. हाँ, the reproductive whorl is called as androecium. Its single member is known as stamen. Its another name is microsporophyll. Then sporangia producing organ is anther. क्योंकि सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है डायलेटेड दैट इज नोन एज एंथर. उसमें 4 स्पोरेंजिया या पोलन सैक रहती है. सो स्पोरेंजिया आर नोन एज पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया. देन स्पोर मदर सेल इज पीएमसी यानी स्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड सेल है जिसको हम स्पोर मदर सेल बोलेंगे विच कैन डिवाइड बाय मियोसिस. सो इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल. दोनों भी नाम है उसके लिए. माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या पोलन मदर सेल बोलो. उसके अंदर जो मियोसिस के बाद सेल प्रोड्यूस होने वाली है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोर. और हियर it is known as pollen grain or microspore. Then microspore will germinate to form 3-celled structure which is known as gametophyte or male gametophyte. Then gametophyte will show male gamete. अब आपको बताना है reproductive whorl is single member stamen. उसका दूसरा नाम microsporophyll. उसके अंदर जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है जो भी उसे हम बोलते हैं एंथर. एंथर इज़ अ स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. स्पोरेंजिया का मतलब है हाउस ऑफ स्पोर विच इज़ एक्चुअली पोलन सैक. सो स्पोरेंजिया हियर इज नोन एज पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया. पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया. उसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल.
उसके अंदर जो मियोसिस होगा तो मियोसिस का जो रिजल्ट है दैट इज formation of spore, because spore mother cell will form spore, but here the spores are known as microspores or pollen grain. So microspores or pollen grains will germinate to form gametophyte. Microspore or pollen grain will germinate to form gametophyte. So male gametophyte with pollen tube and 2 male gametes and 3 cell structure, and then the gamete. गमेटोफाइट में गमेट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए तो उसका नाम गमेटोफाइट है, बिकॉज दैट विल प्रोड्यूस गमेट. इज इट क्लियर टू यू? सो लेट अस सी स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटी ऑफ एवरी पार्ट. नाउ देखिए, इससे हम शुरू करते हैं. ये नहीं है, पोलन ग्रेन से हम शुरू करते हैं. ये देखिए, दिस इज स्टेमन. हाँ, प्रोडक्शन ऑफ मेल गमेटोफाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है. सपोज दिस इज स्टेमन. ये यहाँ से यहाँ तक रेड स्क्वायर से जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज स्टेमन. और स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं. द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज एंथर एंड द लोअर इज नोन एज फिलामेंट. सो एंथर एंड फिलामेंट, एंड ऑलवेज द नंबर ऑफ स्टेमन is peculiar in a particular species, hence, or particular family we can say. Hence Linnaeus used this character to classify various angiosperms, है ना. यानी number of stamen, this particular character was utilized by Carolus Linnaeus to classify various plants, angiosperm, flowering plants into families. So number of stamen is the peculiar character. बाकी के कैरेक्टर्स जैसे हाइट, कलर ऑफ फ्लावर, लीफ एट्सेट्रा, फ्लावर यानी कलर ऑफ फ्रूट एट्सेट्रा, दे मे चेंज, बट द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द फ्लावर आर ऑलवेज मेंटेन्ड. Reproductive features are always maintained, means the number of stamen, structure of stamen, number of carpels, structure of carpel. All these are the reproductive features which are always maintained by a particular species, by a particular family. We can say within a particular family various genus come, है ना. और जीनस में आती है स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज को हम क्लासिफिकेशन का यूनिट बोलते हैं. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज. मेनी स्पीसीज कम अंडर वन जीनस, मेनी जीनस अंडर वन फैमिली. बराबर बोला. सो दिस इज स्टेमन. ये वाला स्टेमन है. और स्टेमन में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे स्पोरेंजिया का प्रोडक्शन होने वाला है, उसे हम बोलते हैं एंथर. सो एंथर इज स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. कंप्लीट स्टेमन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल बिकॉज दिस इज द लिफ. फिल का मतलब होता है लिफ. वाई माइक्रोस्पोरोफिल? बिकॉज दिस इज मॉडिफाइड लीफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, सो इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल. आप लिखिए स्टेमन डैश माइक्रोस्पोरोफिल एज स्टेमन डैश माइक्रोस्पोरोफिल एज it is modified leaf for production of microspore, as it is modified leaf for production of microspore. So stamen is equal to filament plus anther, and anther is nothing but microsporangia producing structure. ऐसे ना नींद में भी आपको पूछे तो याद आना चाहिए कि what is anther? It is microsporangia producing structure या sporangia producing structure. अब इसके अंदर के microsporangia आपको नज़र आ रहे हैं. पीछे का फोटो देखो आप, ये वाला, ये anther का TS है. और इस TS ऑफ anther में आपको 4 राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे. 1 2 3 4. ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हीं में पोलन मदर सेल रहती है
जिनको हम बोलते हैं पोलन सैक, ये सभी राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हम पोलन सैक बोलते हैं। पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल में मियोसिस टू फॉर्म 4 haploid microspores. So here you can see 4 haploid microspore. In this particular diagram you can see 4 haploid microspores. So this structure pouch is known as microsporangia or pollen sac, because within that the microspore will form, hence it is known as microsporangia. Clear to all? So complete structure is known as कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इससे हम क्या बोलेंगे, मीन्स एंथर. कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मीन्स एंथर. विद इन एंथर actually 2 lobes are present. Normally 2 lobes are present, but only single lobe can also be present there. If 2 lobes are present, then this anther is known as dithecous anther. If 2 lobes are present, then the anther is known as dithecous anther. If single lobe is present, suppose only single lobe is present, यहाँ पे ये वाला एक लोब, ये वाला दूसरा लोब, ऐसे 2 लोब आपको दिख रहे हैं, तो इस एंथर को हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस एंथर. लेकिन अगर सिंगल लोब रहता है तो हम बोलेंगे मोनोथिकस एंथर. सिंगल लोब मोनोथिकस, 2 lobes dithecous. In 1 lobe 2 microsporangia or pollen sacs are present. In single lobe 2 microsporangia. So in 2 lobes 4 microsporangia are present, pollen sacs are present there. Then you can see various layers of epidermal cells. Then inner to that is endothecium, inner to that are the मिडल लेयर्स. ऐसे इसका टोटल स्ट्रक्चर रहता है. सी स्टेट बोर्ड, ऑल पिक्युलरिटीज आर गिवन हियर. सबसे बाहर का जो है दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस. सबसे बाहर का जो वाइट कलर का लेयर दिया है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. उसके अंदर का है एंडोथेशियम, उसके अंदर के मिडल लेयर्स. तो जो मिडल लेयर्स है ना, वो हर एक पोलन सैक के खुद के रहते हैं. देखिए टीएस ऑफ एंथर में सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथेशियम, उसके अंदर है मिडल लेयर. आपको सभी पिक्युलरिटीज अच्छे से समझनी है. सबसे बाहर का आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर एंड मेड अप ऑफ tabular or flattened cells. Then endothecium is sub-epidermal layer made up of radially elongated cells. Radially यानी आड़ी आड़ी, रेडियस वाइज जो elongate हुई है ऐसी cells है, they are known as endothecial cells. So endothecium is inner to that of epidermis. So outermost layer of the anther is epidermis. Inner to that endothecium, inner to that middle layers. Middle layer made up of thin walled cells, 1 to 2 layers are present, which may disintegrate in mature anther. Tapetum is the innermost nutritive layer and of anther wall. It immediately encloses the sporogenous tissue or microspore mother cells. ये पूरे layers आप एक काम कीजिए, एपिडर्मिस को फर्स्ट नंबर, एंडोथेशियम को सेकंड नंबर इसलिए देना है आपको क्योंकि क्लियरली ये लाइन क्या दिखा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए एपिडर्मिस को फर्स्ट नंबर, एंडोथेशियम को सेकंड नंबर और मिडल लेयर्स को थर्ड नंबर दीजिए. और एपिडर्मिस और एंडोथेशियम ऊपर आप लिखिए. Epidermis endothecial layer encloses all 4 pollen sacs. Epidermis and endothecium encloses all 4 pollen sacs. Whereas middle layers, they
there are 2-3 layers of cells. Middle layers are for individual pollen sac. Middle layers are for individual pollen sac. इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर के लेयर्स है ना, जैसे एपिडर्मिस और एंडोथेशियम, वो सभी के सभी पोलन सैक्स के लिए कॉमनली प्रेजेंट है. मेरा एरो देखो कैसे जा रहा है. एंडोथेशियम और एपिडर्मिस ये सभी पोलन सैक को इस प्रकार से एनक्लोज कर रहा है. ये सभी पोलन सैक को एनक्लोज करने वाले जो है कौन से है वो? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम. लेकिन जो ये वाला लेयर है, मिडल लेयर, देखिए ये वाले जो मिडल लेयर्स है ये किसको एनक्लोज करते हैं? मिडल लेयर्स दे आर एनक्लोजिंग ओनली इंडिविजुअल पोलन सैक. द मिडल लेयर्स एनक्लोज ओनली इंडिविजुअल पोलन सैक. इज इट क्लियर टू ऑल? हर एक लेयर, हर एक पिक्युलरिटी इम्पॉर्टेंट है. आप एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते हो. मैं बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि एक लाइन भी आपने छोड़ दी ना तो भगवान ना करे कि उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपके 4 मार्क जाएंगे. इसीलिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो. जो दिया है, जो मैं बता रही हूँ, हर एक लाइन आपको याद करनी है. सो आउटर मोस्ट बोलो फिर से. एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, सिंगल लेयर है वो. उसके अंदर 2-3 लेयर्स middle layers, they are enclosing individual pollen sac, but outer 2 layers are enclosing all 4 pollen sacs. और इनके बीच में आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो डायथिकस एंथर है. इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम वास्कुलर बंडल बोलते हैं. दिस इज कनेक्शन ऑफ वास्कुलर बंडल विथ एंथर. दिस इज कनेक्शन ऑफ वी वास्कुलर बंडल विथ एंथर. क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सेल्स बढ़ रही है उनको खाना पीना तो चाहिए कि नहीं? तो कौन पहुँचाएगा? जाइलम और फ्लोएम का बंडल ही खाना पीना पहुँचाएगा उनको. सो दिस इज वास्कुलर बंडल. देन इनर टू दैट हम ये देख सकते हैं कि ये टैपेटम की सेल्स है. इसके अंदर जो है ना वो टैपेटम की सेल्स है. तो टैपेटम की सेल्स हरदम पॉलीप्लॉइड, नॉर्मली दे आर ट्रिप्लॉइड. हाँ, they show polyploidy because they nourish the inner sporogenous tissue. अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट देने का काम ये टैपेटल सेल्स करती है. आपको लिखना है वही स्टेट बोर्ड में. टैपेटल सेल्स आर पॉलीप्लॉइड बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट, एंड इन प्लांट्स tapetal cells are polyploid because they provide nourishment, comma, in plants nourishing tissue is always polyploid. Nourishing tissue is all many a time, always मत लिखो, nourishing tissue is many a time polyploid. For example, endosperm. Endosperm is triploid. For example, endosperm which is triploid. Tapetum is polyploid. Tapetum is nourishing tissue, hence it is polyploid. Polyploidy helps in gathering more nourishment. Polyploidy helps in gathering more nourishment. Hence tapetum and endothecium, they are tapetum and endosperm, they are polyploid structures. Then microsporogenesis. ये किस प्रकार से चलता है देखो. सबसे पहले हमने माइक्रोस्पोरोफिल देखा, यानी कि स्टेमेन. स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट है. फिर एंथर का स्ट्रक्चर देखा हमने, जिसमें ये पूरे सेल्यूलर लेयर्स देखे, हर एक का काम अलग होता है. सबसे अंदर स्पोर मदर सेल है जो कि मियोटिकली डिवाइड होती है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
meiotic division of microspore mother cell is known as microsporogenesis. बोलिए, meiotic division of microspore mother cell is known as microsporogenesis. माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट पोलन ग्रेन्स, जिनको पोलन ग्रेन बोलते हैं वही तो माइक्रोस्पोर है. देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हम ठीक है जैसे यहाँ पे दिया है तो देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस देख सकते हैं. देखो, दिस इज़ द प्रोसेस. ये माइक्रोस्पोर है, उसके अंदर मेल गमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो microsporogenesis is the simple process in which microspore mother cell, which is 2n, which is descendant of tapetum, will divide by meiosis to form microspore. आपके NCERT पे एक जो फ्लो चार्ट में लिखा के दे रही हूँ वो लिखो, बिल्कुल छोटा सा है, बड़ा नहीं है. Within pollen sac, sporogenous tissue develops from tapetum. लिखो, within pollen sac sporogenous tissue develops from tapetum. Sporogenous tissue develops from tapetum that consists of archisporial cells. That consists of आर्कीस्पोरियल सेल्स, ARCHAE. आर्कियोलॉजी पता है ना आपको, पुरातन, सबसे पहला ऐसे हम बोलते हैं. सो आर्कीस्पोरियल सेल्स, दे आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू. आर्कीस्पोरियल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. एरो देख के लिखो. स्पोर मदर सेल्स. आर्कीस्पोरियल सेल्स के सामने आपको लिखना है 2n. जहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल लिखा उसके सामने लिखो 2n's. जगह नहीं है तो नीचे लिखो उसी के. एरो देखिए आप लिखेंगे, ते सांगितलेलं मी आधीच कि आर्कीस्पोरियल सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम टैपेटम, और टैपेटम पॉलीप्लॉइड है वो भी बताया मैंने. टैपेटम इज पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर, उनसे जो बनेगा वो आर्कीस्पोरियल सेल्स विच आर 2n. फिर एरो देखिए आप लिखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स इन ब्रैकेट 2n. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स इन ब्रैकेट 2n. एरो मियोसिस. एरो के बाद आप लिखेंगे मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन. फिर से एरो. माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. हाँ, ये जो है ना, ये गमेटोफाइट की पहली सेल है. स्पोर जो है वो वहीं पे एरो देके आप लिखिए. पोलन्स जर्मिनेट ओवर द रिसेप्टर स्टिग्मा. Pollens germinate over the receptor stigma to form male gametophyte. To form male gametophyte. Which is with exine, entine, exine, EXNINE, exine, entine, pollen tube, with tube nucleus and 2 male gametes. Pollen tube with tube nucleus and 2 male gametes. So this is known as male gametophyte. पहले लिखा ना आपने male gametophyte? Okay. So
by this path there is formation of gametes within gametophyte. तो हर एक का स्ट्रक्चर भी हमें देखना पड़ेगा. टैपेटम का आपने देख लिया, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर यानी पोलन ग्रेन का कैसे होता है. इट इज सराउंडेड बाय टू layered wall called as sporoderm. The outer wall is exine, inner is called as entine. Thick and exine is made up of sporopolonium. Sporopolonium is the hardiest substance in nature. Sporopolonium के बारे में दिया है, non biodegradable and very complex substance. You can write here hardiest substance in nature, sporopolonium. It is non biodegradable, इसीलिए पोलन ग्रेन सालों साल रहते हैं. वो डिग्रेड नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर क्या रहता है, स्पोरोपोलोनिन, हार्डीएस्ट सब्सटेंस. हार्डी का मतलब होता है लॉन्ग लिविंग. इट मे बी smooth or with a sculptured pattern characteristic of species. It is resistant to chemicals. At some places exine is very thin, showing thin areas grown as germ pores. Pollen tube during germ pores, these are meant for the growth of emerging pollen tube during germination of pollen grain. The inner wall layers entine consists of cellulose and pectin. जो उसके inner wall layers है, they are made up of what? Cellulose and pectin. तो सबसे बाहर का लेयर है एक्साइन, जिसमें स्पोरोपोलोनिन है. उसके अंदर का जो है वो एंटाइन है, लेकिन एक्साइन को कहीं कहीं पे छेद है, उन्हीं छेद को बोला जाता है जर्म पोर. हाँ, तो अगर सिंगल जर्म पोर है तो उसे हम बोलेंगे मोनोकोलपेट या मोनोपोरेट. यहाँ पे लिखिए सिंगल जर्म पोर डैश, नीचे लिखना है आपको सिंगल जर्म पोर डैश मोनोपोरेट PORATE और मोनोकोलपेट COLPATE. मोनोकोलपेट, मोनोपोरेट और मोनोकोलपेट. ओके, और डैश देखिए लिखिए मोनोकॉट. ये ऐसे किस में रहते हैं, मोनोकॉट्स में रहते हैं. मोनोकोलपेट और मोनोपोरेट जर्म मोनोपोरेट पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट. अब नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो 3 germ pores tricolpate or triporate. 3 germ pores triporate और tricolpate. फिर से डैश देके डाइकॉट. ये किस में रहते हैं, डाइकॉट में. यानी डाइकॉट में कितने जर्म पोर्स रहेंगे, 3, और मोनोकॉट में सिंगल. यानी जो पोलन ग्रेन है ना उसको 3 जर्म पोर रहेंगे. यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 और 3. यानी जर्म पोर का मतलब क्या होता है कि बाहर का जो एक्साइन है ना वो फट चुका है, कहीं कहीं पे 3 जगह पे फटा है. उन 3 जगह को बोला जाता है जर्म पोर्स, बिकॉज फ्रॉम देम ओनली, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर ओनली द पोलन ट्यूब विल कम आउट. व्हाई दैट पोर इज कॉल्ड अ जर्म पोर, बिकॉज फ्रॉम that tube from that pore only the pollen tube will come out. Hence it is called as germinating pore or germ pore. जर्मिनेशन किसका हो रहा है, पोलन ग्रेन का हो रहा है. और जर्मिनेशन के बाद क्या फॉर्म हो रही है, पोलन ट्यूब. ये सीड का जर्मिनेशन नहीं है, ये पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन है. तो जर्मिनेशन के बाद क्या बाहर पड़ा है, पोलन ट्यूब. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन रिवाइज पोलन ग्रेन एंड देन वी विल लर्न
development of gametophyte, male gametophyte. Okay, bye.